Students, in the previous lecture, we have talked about correlation, types of correlation, and measurement of or measures of correlation, in which we have talked the first method, scatter diagram method, and then we talked about the correlation coefficient, Carl Pearson's correlation coefficient. We have seen one problem for solving the for solving it for finding the coefficient of correlation between the values of x and y, and we have seen this problem in the previous video. Now today I will show one more example related to that, an alternative formula which I told you about. When correlation coefficient is, as we know, that it is independent of change of origin and scale. So when the data of x and y is very large, the values of x and y are very large, then in that situation we reduce the values of x and y by treating u is equal to x minus a upon h and v is equal to y minus b upon k. Here a is the middle value of x series and b is the middle value of y series, and h is the constant term, or as a constant value which is common in all values of x minus a. After subtracting a from x, the remaining values, we look after the remaining values, and we try to find out the constant term which is present in each and every value x of x minus a. So we divide it by that value h, so we have let it as h, and similarly for v we let the constant as k, and then u and v will be similarly treated as x and y, since I have already told that correlation coefficient is independent of change of origin and scale. So it doesn't matter whether we are calculating r for x and y and whether we are calculating the correlation coefficient r for u and v, it is independent of the change of origin and scale. So let us see an example on this second one property. This is the example. As you can see that in this problem, find the coefficient of correlation for the following data. We need to find the coefficient of correlation for the following data. Now you can see that the values of x and y are slightly bigger. So obviously when x and y are bigger, then the values of x square, y square, as in this formula we calculate summation of x squares का समीशन लेना है, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर्स का समीशन, सिमिलरली एक्स इंटू वाई करना है, देन उसका पूरा कॉलम का समीशन. तो ये वैल्यूज़ ऑब्वियसली जब एक्स और वाई बड़े होंगे तो ये वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी. तो हमने क्या किया, देखिए एक्स ये था, वाई ये था. अब इसमें जैसे मैंने बताया ए आप क्या वैल्यू लेते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन हमने एच दिखाया था आपको. तो एक्स में से जब ए कौन सी वैल्यू होती है, जो एक्स का डेटा आपको दिया है, आप एक्स का कॉलम देखिए, इसमें जो भी वैल्यू आपको हम मिड वैल्यू लेते हैं. क्यों लेते हैं मिड वैल्यू? क्योंकि जब कोई मिड वैल्यू आप लेंगे तो उसको जब एक्स में से उस मिड वैल्यू को घटाना है, तो हर एक वैल्यू में से एक्स का मतलब क्या है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए. तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए लिया है 22 को. आप देखिए बीच की वैल्यू कौन सी, 3 वैल्यू ऊपर है, 3 वैल्यू नीचे है, 6 हैं. तो अगर बीच की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे 18 और 22 दोनों ही आ रहे हैं. तो हम किसी को भी ले सकते हैं जो मिड में, यहाँ पे एक्चुअली मिड में 2 वैल्यू मिडिल वैल्यूज़ हैं, तो या तो हम 18 को लें या तो 22 को, आप किसी को भी ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे 22 को ले लिया है. तो जब आप 22 को देखिए मैंने लिया है, तो अब हर एक ये तो u कैलकुलेट जब करेंगे हम, ये थर्ड कॉलम देखिएगा, तो u जब कैलकुलेट करेंगे तो x में से 22 को सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए. तो देखिए आपने क्या किया, 10 में से 22 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 में से 22 गया, क्या बचेगा आपका, माइनस का 12. कितना बचा, माइनस का 12. देखिए मैं यहाँ पे बगल में लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. तो मान लीजिए मैंने ये लिख लिया, माइनस का 12 आ गया, ठीक है. फिर देखिए, फिर हमने क्या किया, फिर से घटाइए, नेक्स्ट वैल्यू 14 है, x की जगह रखिए 14. 14 माइनस 22, 14 में से 22 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, हाँ हमारे पास आ गया माइनस का 8, माइनस का 8 आ गया. ऐसे ही आप 18 में से 22 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आया, माइनस का 4.
यस। ऐसे ही 22 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। 26 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 4। 30 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 8। ठीक है। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो जो हम डिवाइड कर रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म मैंने बताया x माइनस ए अपॉन एच होता है फॉर्मूला, तो h क्या चीज़ है? h, अब देखिए इस कॉलम में जो हमें मिली है वैल्यूज़ u की निकली है x माइनस 22 के लिए, इन वैल्यूज़ को अगर आप देखेंगे, हाँ, तो जब आप इन वैल्यूज़ को देख रहे हैं तो आप देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। आप देखिए तो ये सारी वैल्यूज़ 4 से डिवाइड हो जाएंगी। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसको और छोटा किया जा सकता है। तो यही है h, जो मैंने यहाँ पे 4 मान लिया है। चूँकि मुझे दिख रही सारी वैल्यूज़ 4 से डिविजिबल हैं, तो हमने पहले ही इसको करके देख लिया है और उसके बाद मैंने इस कॉलम को लिखा है u का 4 तभी लिया है मैंने। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको रफ में आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप h ना लेना चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप h ना लेना चाहिए ना लीजिए, h की वैल्यू 1 हो जाएगी उस सिचुएशन में। अगर किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना है तो यही वैल्यूज़ रहेंगी, लेकिन आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर, u का स्क्वायर करेंगे तो इनका स्क्वायर्स करेंगे, फिर u इंटू वी करेंगे तो ये वैल्यूज़ बड़ी आएंगी, ऐसे वैल्यूज़ छोटी हो जाएंगी। तो हमारा देखिए ये रिजल्ट कितना आसान आ गया। देखिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, 4 से कर दिया तो ये 3 आ गया, 4 2 जा 4 से डिवाइड किया माइनस का 2, 4 से डिवाइड किया माइनस का 1, 0 का 0 ही रहेगा, 4 1 जा 4, 4 को 4 से डिवाइड किया, फिर 4 को 8 से किया तो 4 2 जा 8, तो 4 से 8 को किया तो 4 2 जा 8, तो इन सब को 4 से डिवाइड किया तो देखिए कॉलम बन गया। सिमिलरली देखिए हमने v का कॉलम बना लिया। v में क्या किया हमने, देखिए 24 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब y की मिड वैल्यू देख लीजिए क्या है, एक 24 भी थी, एक प्लस का 6 थी, तो अब इसमें हमको लेना था कोई एक वैल्यू। तो देखिए आप खुद ही, आप चाहें तो 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 24 थोड़ा स्लाइटली बड़ी वैल्यू है और इसलिए हमने यहाँ पे फिलहाल 24 को लिया। आप चाहें तो 6 को भी लेके कर सकते थे, तो हमने 24 को ले लिया। तो 24 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, और फिर आप देखिए तो, और फिर हमने उसको देखा तो उसमें जो ये आ रही वैल्यूज़, जैसे 18 माइनस 24 करेंगे आप, 18 है पहली वैल्यू, रखिए y की जगह पे 18 माइनस 24, तो 18 में से 24 गया, क्या बचा माइनस का 6, माइनस का 6। अब आप जो पूरे कॉलम में वैल्यूज़ आएंगी वो सब 6 के मल्टीपल में आएंगी हमारी। ऐसे ही जब 12 में से 24 गया तो माइनस का 12, देख रहे हैं आप, जैसे ये एक कॉलम आ चुका है, ऐसे ही जब हमने किया तो ये आ गया हमारा, v की वैल्यू निकाल लेते ना, हाँ, तो 18 माइनस 24 क्या आया, माइनस का 6, फिर 12 माइनस 24 माइनस का 12, फिर 24 माइनस 24 0 हो जाएगा, फिर 6 माइनस 24 6 माइनस 24 माइनस का 18, 30 माइनस 24 प्लस का 6, फिर 36 माइनस 24 प्लस का 12। देखिए अब ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब आप देखिए इन सब में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो हम इस पूरे कॉलम को 6 से डिवाइड कर दें। तो देखिए 6 को 6 से डिवाइड करें क्या आएगा, -1, फिर 6 को -12 को 6 से डिवाइड करिए, ये देगा -2, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, -3, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो इस तरह से देखिए ये हमने कॉलम निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, u का स्क्वायर निकाल लीजिए, जैसे x के लिए x का स्क्वायर करते थे, y का स्क्वायर करते थे और x इंटू वाई करते थे, वैसे ही अब uv के लिए चलेगा। तो u का स्क्वायर निकाल लिया, v का, इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में आएगा, -3 का स्क्वायर +9, -2 का स्क्वायर +4 एंड सो ऑन। जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहेगा ही, जो निगेटिव वैल्यू है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। देखिए नीचे हमने सम कर लिया, सिग्मा u हमें चाहिए -3, इन सबको जोड़ लीजिए, +3 और -3 कैंसिल, ये माइनस का 3 बचा तो माइनस का 3 हो गया। ऐसे ही ये देखिए -3 और -3 -6 हुआ, ये प्लस का 3, तो -6 + 3 -3 बचा। u का स्क्वायर इनको जोड़ लिया 19, v का स्क्वायर किया उनको जोड़ लिया, u इंटू वी, u और v को प्रोडक्ट कर लिया तो -3 इंटू -1 +3, -2 इंटू -2 +4 एंड सो ऑन। इन सबको जोड़ लिया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, u इंटू वी निकालिए, इन सबको जोड़ लिया और u v भी आ गया। अच्छा यहाँ पे देखिए कितने पेयर ऑफ वैल्यूज़ आप गिन सकते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, 5 और 6। तो यानी n की वैल्यू कितने पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं x और y के, टोटल 6 पेयर्स हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देखिए ये फॉर्मूला होता है आपको पता है, तो r इंटू आर यू वी, आर जैसे एक्स वाई के लिए लिख रहे हैं तो वैसे यू वी वेरिएबल के लिए चलेगा, n समेशन यू वी माइनस समेशन ऑफ u इंटू समेशन ऑफ v अपॉन √n इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर्स का समेशन लिया माइनस समेशन u का होल स्क्वायर, √समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर। अब बस सबकी आप वैल्यूज़ पुट डाउन कर दिए, n की जगह 6 रख दिया, सिग्मा यू वी सारी वैल्यूज रख दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस रह जाएगा, 3 3 9 था तो बीच में माइनस रह गया। ऐसे ही अंडर रूट को सॉल्व कर लीजिए, देखिए वैल्यूज इतनी आ गई, ये आ गया, ये आ गया,
63/100 दो बार अंडर रूट में आया ना, तो इसका बनेगा अंडर रूट 105 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल कर देंगी पावर्स एक दूसरे को, तो हमें बचेगा 105 बचेगा, तो 63/105 दैट इज आर, तो 0.6 आर की वैल्यू 0.6 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम को भी करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन ने और देख लिया। अब हम बात करेंगे, आज हम जो अपना मेन टॉपिक है जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे थे, दैट इज रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन में अब ऐसा कई बार होता है कि हमें हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा नहीं दिया जाता, क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं दिया जाता, हमें क्वालिटी के फॉर्म में डेटा दिया होता है। जैसे हमें ऑनेस्टी किस हमें जज करना है, 10 लोग हैं मान लीजिए, और 10 पर्सनस के भी में हमें चेक करना है किसकी ऑनेस्टी, हमें ऑनेस्टी के लेवल पे उनको ग्रेड करना है, उनको रैंक निकालनी है, उनको रैंकिंग देनी है कि सबसे ईमानदार कौन है, फिर सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर कौन है, और सबसे लास्ट में कौन है। या हमें ब्यूटी के बिहाफ पे मान लीजिए 10 अगर लेडी ग्रुप है, 10 लेडीज़ का कोई एक ग्रुप है, उसमें हमें उनकी ब्यूटी के अकॉर्डिंग उनको हमें रैंकिंग करनी है कि सबसे सुंदर कौन है, फिर सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड कौन है। सिमिलरली ऐसे ही और भी चार प्रॉपर्टीज जो वर्च्यूज़ होते हैं उनके बिहाफ पे अगर हमें रैंकिंग करनी पड़ जाए, तो वो डेटा जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है, वो क्वालिटी के बिहाफ पे डिपेंड कर रहा है। ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, ब्रेवरी है ना, तो इंटेलिजेंस है कि कौन कितना बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये सब डेटा जो है आपका क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा, नॉट इट इज़ क्वांटिटेटिव नहीं होता, मात्रात्मक नहीं है बल्कि गुणात्मक है ये। तो ऐसी सिचुएशन में हमने जो अभी पीछे जो पढ़ा, हमने कार्ल पियर्सन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा, वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हमें जो अलग अलग जो दो, जैसे फॉर दो आदमियों के लिए हमें दो ग्रुप ऑफ हमें लोगों के बीच में अगर हमें इसको जज करना है, तो हम उसमें रैंक देते हैं दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिए। जितने ऑब्जर्वेशन हैं उनको हम रैंक करेंगे 1 2 3 4, इस तरह से अपनी तरफ से हम रैंकिंग करते हैं, और फिर हम रैंक कोरिलेशन हम निकालते हैं कि हम भाई देखते हैं कि हमारा जो रैंक हमने दी है वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। तो रैंक कोरिलेशन जब आप इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। वही सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इट कैन आप देख सकते हैं, समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अरेंज वेरियस आइटम्स ऑफ अ सीरीज इन अ सीरियल ऑर्डर, दैट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी कैन नॉट बी असाइंड मार्क्स, दे आर एट्रीब्यूट्स एंड कैन ओनली बी गिवन रैंक्स। सो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन इज गिवन एज, तो स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट उन्होंने दिया उसका फॉर्मूला क्या है, RS करके भी लिख सकते हैं, सिंपली R भी लिख सकते हैं आप, 1 - 6 समेशन ओवर DI स्क्वायर अपॉन N इंटू N स्क्वायर -1। N तो आप जान रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई है XY की, या जो भी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, और N हो गया। DI, यहाँ कैपिटल DI का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, XI और YI जो हैं इनके बीच में, इनकी जो रैंक्स हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, विच इज़ डिफरेंस ऑफ रैंक्स, ये रैंक्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, X सीरीज़ को हमने एक रैंक देंगे R1 R2 R3 करके, यानी 1 2 3 फर्स्ट। आप रैंकिंग का ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंकिंग दे सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे सकते हैं। इससे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है तो X में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में देंगे रैंकिंग्स, और Y में भी देंगे। अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहे हैं तो X को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में देंगे और Y को भी देंगे, तो जो कोएफिशिएंट निकलेगा उसकी वैल्यू सेम आएगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रैंकिंग किस ऑर्डर में कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ रिमार्क्स हैं। वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1, जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू -1 से +1 में लाई करेगी। अगर R की वैल्यू एक्जैक्टली +1 आ जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रैंक दी गई है, हमने एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे जो रैंकिंग की है, जैसे ब्यूटी के लिए दी है या ऑनेस्टी के लिए दी है, इंटेलिजेंस के लिए रैंकिंग की है, वो बिल्कुल सही रैंकिंग की गई है। इसका मतलब अगर +1 एग्जैक्टली आता है, अगर -1 आता है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल भी 1% भी रैंकिंग जो की गई है वो सही नहीं की गई है। इट इंडिकेट्स कंप्लीट डिसएग्रीमेंट इन द ऑर्डर ऑफ रैंक। जो ऑर्डर ऑफ रैंकिंग की गई है वो 0%, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई उसमें बिल्कुल 100% वो डिसएग्री कर रहा है कि जिसने भी रैंकिंग की बिल्कुल गलत है, उसमें बिल्कुल भी 1% भी सही नहीं है रैंकिंग। ओके, तो ये है R की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आपकी आएगी। तो इस तरह सब देखिए, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। जैसे ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब मान लीजिए हमारे पास ये 10 लोग हैं, A से लेके J तक हमारे पास 10 पर्सन है जिनको हमने नाम दिया है A B C D E F G H I J। ठीक है, ये 10 लोग हैं, और मान लेता हूँ ये 10 जो स्टूडेंट्स मैंने लिए हैं, इनको मैथ्स में इनको रैंक
मिली है और फिजिक्स में इनको रैंक दी गई है। ठीक है, मैथ्स के पेपर में उनकी रैंक यहाँ पे आपके सामने ऑलरेडी इनको रैंक दी जा चुकी है, अलग से हमें नहीं देना, इनको किसी बिहाफ पे इनको रैंक दी गई है, और फिजिक्स में भी इनको रैंक्स दी गई हैं। अब हमें देखना है कि जो रैंक कोरिलेशन है वो किस हद तक सही किया गया है, ये सही भी है या नहीं है, या कितना सही है या कितना गलत है। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी रैंक्स थी, तो देखिए कैसे लिखना है हमने। पर्सन्स को लिख लिया पहले, तो 10 लोगों के नाम लिख लिए ABCD जैसे लेके J तक। अब पहली हमने जो रैंक मैथ्स के लिए दी है उसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया, रैंक लिख ली। जैसे A जो बच्चा है, मान लेता हूँ A है, अभिषेक नाम के बच्चा है मान लेता हूँ, इसको 9 हमने मैथ्स में इसको 9th रैंक मिली है, जबकि फिजिक्स में ये बच्चा फर्स्ट रैंक होल्ड कर रहा है फिजिक्स सब्जेक्ट में, जबकि मैथ्स में इसको 9th रैंक मिली है। ठीक है, ऐसे जो B है स्टूडेंट, उसको मैथ्स में वो 10th रैंक होल्ड कर रहा है, जबकि फिजिक्स में वो 2nd पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से, तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा हो तो वो फिजिक्स में भी बहुत अच्छा होगा। जनरली ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर बच्चे के केस में ऐसा हम नहीं कह सकते। तो देखिए ये आ गया, तो ये रैंक दी गई थी, हमने डिफरेंस निकाल लिया D, R1 माइनस R2, मतलब पहले वाले में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए। ठीक है, R1 में से R2, तो हमने सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस में आप उल्टा भी कर सकते हैं, R2 माइनस R1, इट डजंट मैटर, लेकिन आपने जिसको पहले रैंकिंग दी है उसमें से बाय डिफ़ॉल्ट हम ये करते हैं कि जिसको पहले किया उसमें से जिसको बाद में रैंकिंग दी है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 माइनस 1 8, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 4 1। ठीक है, ऐसे आपने कर लिया। तो देखिए ये वैल्यूज़ आ गई। जब यहाँ पे निगेटिव कैसे आई, 2 माइनस 6, तो माइनस 6 बड़ा होगा तो -4, 4 माइनस 7, -7 बड़ा है -3, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 9 -8, 3 माइनस 10 -7। ठीक है, और हमें क्या चाहिए एक्चुअली, आपको पता है कि जो फॉर्मूला है उसमें आपको पता है, देखिए इसमें क्या, समेशन ऑफ DI स्क्वायर, जो D है उसका स्क्वायर चाहिए हमें। तो ये D कॉलम निकला, इसके स्क्वायर्स का समेशन चाहिए, तो स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 8 का 64, ऐसे ही निगेटिव का स्क्वायर होगा तो प्लस में आएगा, -4 का स्क्वायर +16, -8 का स्क्वायर +64, -7 का स्क्वायर +49 एंड सो ऑन। देख लीजिए, तो समेशन D स्क्वायर जो है वो हमारी वैल्यू देखिए नीचे आ रही है 280, सिग्मा D स्क्वायर की वैल्यू आ गई 280। ओके, तो अब ये वैल्यू बस उठा के आप देखिए, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट डाउन कर दी, 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। तो यहाँ से देखिए R की वैल्यू 1 माइनस 6 इंटू 280 अपॉन 10 स्क्वायर -1, और इस तरह से देखिए सॉल्व करते चले आएंगे। 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 1 दैट इज 99, तो 6 इंटू 280 1680 अपॉन 10 इंटू 99, और इज इट इज 1 माइनस 168 अपॉन 99, इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर लिया 1.697, इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 में, तो देखिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव का मतलब ही है कि अब एग्जैक्टली -1 अगर होता तो इसका मतलब जो रैंकिंग की गई है वो बहुत ही मतलब बिल्कुल 100% डिसएग्री कर रही है, लेकिन चूंकि माइनस में 0.697 है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से हम नहीं कह सकते 100% डिसएग्रीमेंट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम तब भी ये कह सकते हैं कि जो डिसएग्रीमेंट का लेवल है वो लगभग 0.7 है, यानी 70% डिसएग्री हम कर रहे हैं कि जो रैंकिंग की गई है वो लगभग 70% गलत की गई है। तो हम आप ये कह सकते हैं कि 70% हम इस डेटा से जो रैंकिंग की गई है मैथ्स और फिजिक्स में बच्चों की वो सही नहीं की गई है। 70% डिसएग्रीमेंट आ रहा है डेटा का, जो रैंकिंग जिस भी टीचर ने या जिसने भी किया है इन बच्चों के लिए। तो ये तो हो गया आपका रैंक कोरिलेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइड रैंक्स कैसे हम करते हैं। टाइड रैंक्स का केस भी आता है, इसमें तब प्रॉब्लम आएगी जब रैंक इसमें सेम हो जाएगी। अगर दो बच्चों की रैंक सेम आ गई या दो डेटा ऐसा है जो सेम डेटा है, तो उस केस में किसी स्टूडेंट के सब्जेक्ट में मान लीजिए स्टूडेंट्स के 10 बच्चों के अगर मार्क्स ही हम देख रहे हैं, मान लीजिए 2 बच्चों के नंबर या 3 बच्चों के नंबर सेम आ जाएं 70 70 70, तो अब उस केस में आप किसको 1 रैंक दें, किसको 2nd दें, किसको 3rd दें, हम कैसे इंटरचेंज करें, 1 2 3 कैसे देंगे, या एवरेज निकाल के हम उनको हम रैंक दें। तो ये हम देखते हैं टाइड रैंक्स का केस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइड रैंक जो प्रॉब्लम आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।